morning, students. And today we are going to start our new chapter, and the name of the chapter is Election and Representation. This is chapter number 3, Election and Representation. In this chapter we are going to cover the various systems of election, which system we have adopted in India for the elections. We will study about the election commission, and as per the new syllabus prescribed by the CBSE for your next session, we will discuss the various election or reforms which we require in our present election system. So let's start with the new chapter, Election and Representation. So first we start with the India, what type of government we have, what type of system we have in our country regarding the elections. So election system in India, we start with the election system in India. As we all know that India is a constitutional democracy. Understand? We have a democratic government at every level in our country, and we have a constitutional democracy. Means who is above all? The constitution is the supreme law in the nation. Nobody is above the constitution in this country. So we have a constitutional democracy. Like in your 9th class आप लोग पढ़ के आए होंगे that in some nations we have constitutional monarchy, but in India we have constitutional democracy. India is a republic nation, means the head of the nation is an elected person in India. So India is a constitutional democracy. And what type of system we have in our country? We have parliamentary system of government in our country. Some countries have presidential form of government, some have semi-presidential form of government, but in our country we have parliamentary system of government. Very simple. If anybody asks you that give one example of parliamentary form of government and one example of presidential form of government and one example of semi-presidential form of government. So, आपको 3 countries का ध्यान रखना है. When parliamentary system of government, it's India. Parliamentary system of government, India. Presidential form of government, very simple. America, USA, United States of America is a presidential form of government, and semi-presidential, our neighbor Sri Lanka is having a semi-presidential form of government. In detail, you will study in your higher classes about these various form of governments. But now we are talking about India. So India is a constitutional democracy, and second one is parliamentary system of government we have in our country. Means we have a parliament which has 2 houses, the upper house and the lower house, the Rajya Sabha and Lok Sabha. Upper house is known as Rajya Sabha and lower house is known as Lok Sabha. Then if we are a constitutional democracy and having a parliamentary system of government, then what become essential for us? Commitment to hold regular elections. Commitment to hold regular elections. Because in your 9th class आपने पढ़ा है that democracy is incomplete without the free and fair elections. अगर हम जहां भी हम डेमोक्रेसी की we talk about the democracy, then democracy किसके ऊपर based है? Free and fair election. Democracy is based on free and fair election. If we have a constitutional democracy in our country, it means we should have regular free and fair election in our country. कि भाई एक particular time के बाद हमारी country में election होगा, वही तो डेमोक्रेसी है. So this is about India. Which type of system we have in India? Constitutional democracy, parliamentary system of government, और हमें क्या चाहिए? एक regular free and fair election. Then we will talk about the elections. 2 houses of parliament. अब कहाँ हमारे यहाँ elections होते हैं? किस पार्ट में हमारे जो है कंट्री में कहाँ हम वोट डालते हैं या किस उसमें elections होते हैं? सबसे पहले parliament. We have 2 houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha, lower house, Rajya Sabha, upper house. Then legislative assembly. Legislative assemblies of state and
UTs. Like if we talk about our own state, Haryana, we have a legislative assembly. And how many seats we have in our legislative assembly? We have 90 seats in Haryana. Haryana की बात करें तो हमारे पास 90 seats हैं. In the same, based on the population and geographical area, different states have different number of seats in their respective legislative assemblies. So, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन है, देन लेजिस्लेटिव assemblies of state and UTs, then presidency and vice presidency, means president and vice a president. In our country, president is an elected person, that's why we are a republic nation. Both president and vice presidents are elected. And then we have elections for the local government, the third form of government. When we talk about the level of government in our country, we have 3 levels of government in our country. One is the union government, the central government, then we have different state and UT governments, and we have a third form of government, that is the local government. You can say that panchayat in your villages and municipal councils or corporations in the MC in the urban areas. So we conduct election for these particular bodies. इनके लिए हम हमारी कंट्री में जो है रेगुलर इलेक्शंस जो है कंडक्ट करते हैं. अब नाउ the question is that what system of elections or what procedure of election we have adopted for these different kind of elections in our country, and we will also discuss the various methods of election worldwide, जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं इलेक्शन के वर्ल्ड वाइड जिसको डिफरेंट कंट्रीज यूज कर रहे हैं, और वी विल डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो. सो इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्शंस around the world, we have 2 major procedures of election. 2 major और important procedures हैं election के. First one is the first past the post system. First past the post system. It is also known as FPTP. It is a short form of first past the post system. Clear? Second one is the proportional representation. This is also known as PR system. इसको हम PR सिस्टम भी बोलते हैं because it is a proportional representation. So students, from here we can say that around the world we have 2 procedure of elections or 2 systems of election. Election करवाने के हमारे पास 2 major जो है system है around the world. First one is the first past the post, FPTP system, and second one is the proportional representation, PR system. Under PR system, again we have 3 type of systems. One is the list system, then is the cumulative system, and the single transferable system. Single transferable vote system भी हम इसको बोलते हैं. So it is clear from here that around the world we have 2 major election procedures, 2 important election procedures or election systems. First one is the first past the post and proportional representation. Now, in India, which type of election procedure we adopted in India? क्वेश्चन है कि इंडिया में जो हमारे डिफरेंट इलेक्शंस हैं उसमें हम कौन से प्रोसीजर का जो है हम यूज करते हैं टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, टू इलेक्ट आवर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. तो कौन से जो सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं. तो अगर हम इंडिया की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. We use first past the post system in India for the elections, but we also use one important version of proportional representation. लेकिन हम proportional representation को भी यूज करते हैं. इस मेथड को भी हम इलेक्शंस के लिए यूज करते हैं इंडिया में, और उसके कौन से मेथड को हम यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थर्ड मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, हम यूज करते हैं इंडिया में. So if we talk about India, we use 2 important method for the election in our country. One is the first past the post system, and the second one is the single transferable vote system of PR system, proportional representation system. अब बात करेंगे, क्वेश्चन है
कौन से इलेक्शन में कौन से मेथड को यूज करते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा। व्हाट इज लोकसभा? द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड वी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली। हम कैसे इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को? डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड different constituencies have different candidates from different parties, and the voter directly vote for their representative and they directly elect the representative. So in Lok Sabha we use which method? First past the post, FPTP, which is quite clear. Then come Rajya Sabha. फिर हम बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपने कभी सुना है कि भाई लोकसभा का जब भी इलेक्शन होता है तो हमें पता चल जाता है, बिकॉज वी डायरेक्टली वोट फॉर द लोकसभा। लोकसभा के लिए हम डायरेक्टली जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो अबो 18 ईयर ऑफ एज हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दे डायरेक्टली वोट फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम जो है डायरेक्टली राज्यसभा के लिए भी वोट करते हैं। हम डायरेक्टली राज्यसभा के लिए वोट नहीं करते, बिकॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द, कौन इलेक्ट करता है उनको? कौन इलेक्ट करता है उनको? इलेक्ट करते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें जो इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा में मैंने वो बोला था कितनी सीट्स हैं? 90 सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 90 सीट्स हैं इन हरियाणा। तो इफ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स हरियाणा हैव इन पार्लियामेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हरियाणा से पार्लियामेंट में कितने लोग जो है, कितने कैंडिडेट जो है, कितने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो 15 जाते हैं। कितने? 15। हाउ मेनी? 15। अब वो 15 कैसे जाते हैं? 10 जो है वो लोकसभा से जाते हैं और 5 जो है वो राज्यसभा। 10 जो है वो लोकसभा में जाते हैं और 5 किस में जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। तो जो ये 10 हैं, इनको तो हम FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से डायरेक्टली इलेक्ट करके सीधा का सीधा जो है हम लोकसभा में इनको भेज देते हैं। लाइक वी हैव 10 नंबर ऑफ सीट्स इन हरियाणा। हिसार इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हरियाणा। हिसार भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिससे कि जो ब्रजेंद्र सिंह हैं उनको हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा हुआ है। बट ये जो 5 हैं, इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करते हैं ये जो 90 है ना, 90, जिनको हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम बनते हैं, जो कि हमारे सीएम हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उनके अंदर जो है 90 MLAs हैं फ्रॉम डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो वहां पर गए हैं, वो 90 जो हैं वो इन 5 को इलेक्ट करके कहां भेजते हैं? राज्यसभा। वी विल डिस्कस इट लेटर इन द सेकेंड पार्ट और सेकेंड सेशन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा। हम राज्यसभा का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड PR सिस्टम। और PR सिस्टम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों ही सिस्टम को हमने अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है? सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम हमने जो है अडॉप्ट किया है। सो लोकसभा में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बट फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हम क्या यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज ये जो 5 मेंबर ऑफ राज्यसभा है फ्रॉम हरियाणा, दे आर इलेक्टेड बाय द 90 MLAs। क्लियर? सो राज्यसभा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सॉरी, लोकसभा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, राज्यसभा proportional representation. And which form of proportional representation? Single transferable vote system. फिर हम आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट और यूटीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मींस डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर सिंपली हम क्या यूज करते हैं? FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम।
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ही हम उसमें यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में हम किसका यूज करते हैं? अगेन पीआर सिस्टम का यूज करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन system. So it is quite clear from here that in which election we use which type of method in India. Local governments में फिर से हम क्या करते हैं? FPTP, first past the post system. So we use PR system in the election of तीन के इलेक्शन में हम PR system, proportional representation system, and which method of PR system? Single transferable vote system we use in the 3 election. One is for Rajya Sabha, then for president and vice president. It is quite clear. Now we will discuss these methods in detail one by one. First, we start with the first past the post system, means FPTP system. सबसे पहले हम FPTP system, first past the post system के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, लाइक countries divided into constituencies. सबसे पहली चीज है countries divided into constituencies. As we all know that our country is also divided into 543 different constituencies. हमने different constituencies में अपनी country को जो है डिवाइड किया है. What is a constituency? 9th class, like small geographical area based on the population of that area. We divide the country into different constituencies. Like if we talk about our state Haryana, I have told you that how many constituencies. Constituencies here means the Lok Sabha constituencies. How many constituencies we have? 10 constituencies we have in Haryana. So सबसे पहले क्या है, पूरी कंट्री को हमने किसमें डिवाइड कर दिया? स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड पॉपुलेशन. अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो करते हैं. लद्दाख इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया एरिया वाइज. अगर हम बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है. हिसार से कितने लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे? दुष्यंत चौटाला वॉज देयर, ब्रजेंद्र सिंह वॉज देयर, कुलदीप बिश्नोई वॉज देयर. सभी ने इलेक्शन को कंटेस्ट किया, लेकिन कौन विन तो एक ही ने किया. वो कौन? ब्रजेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्हीं ने विन किया और वो कहां गए? लोकसभा में इलेक्ट होके गए. सो फर्स्ट, कंट्रीज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जाएगा. थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट. वोटर किसके लिए वोट करता है? कैंडिडेट के लिए. बिकॉज वोटर को क्लियर आइडिया है कि वो किस कैंडिडेट के लिए वोट करने के लिए जा रहा है. बिकॉज इन पीआर सिस्टम की जब हम बात करेंगे, वहां पर कैंडिडेट को वोट नहीं किया जाता, वहां पर पार्टी को वोट करते हैं. जो वोटर है वो किसको वोट करते हैं? पार्टी को. उनको नहीं पता होता कौन कैंडिडेट यहां से इलेक्ट होके जाने वाला है. वट एवर दे वोट फॉर द पार्टी. बट इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कैंडिडेट वोटर वोट फॉर द कैंडिडेट. क्योंकि वोटर के पास पहले से ही एक क्लियर वो होता है कि कौन कौन कैंडिडेट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जो कि इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, एंड विच कैंडिडेट इज बेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग हम वोट करते हैं. हमें क्लियरली पता होता है कि हम किस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं. ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. अब ये एक और चीज है, नेक्स्ट फीचर, अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर. अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं. सिंपल सी बात है, ये एक रेस है, ठीक है ना. 100 मीटर रेस है सपोज करो. अब 100 मीटर रेस ओलंपिक का एक पार्ट है. डिफरेंट जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट हैं, कॉमनवेल्थ है या और भी जो एथलेटिक गेम्स उनका एक पार्ट. तो 100 मीटर में क्या होता है? एक लाइन है, लाइन के ऊपर कौन एथलीट्स कर रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द विसल और द साउंड ऑफ द गन, और वो रन करते हैं. और जो उस लाइन को क्रॉस, फिनिशिंग लाइन को बेसिकली जो क्रॉस कर जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. बस फर्क इतना है, यहां पर वैल्यू सिर्फ फर्स्ट की है, सेकंड थर्ड की कोई वैल्यू नहीं है. सेकंड थर्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है, फर्स्ट की. दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. सिंपल. सपोज को 3 कैंडिडेट हैं, C1, C2, C3, ठीक है ना. एक कैंडिडेट को मिले 100 वोट्स, 99,
98। तो सिंपल सी बात है, जो कैंडिडेट 1 है हु गोट द मैक्सिमम वोट्स, नॉट मैक्सिमम वोट्स, हु गोट द मोर वोट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। सिंपली याद रखना है, जो कैंडिडेट अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा वोट ले जाएगा, चाहे वो एक ही वोट ज्यादा क्यों ना हो, उसको हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, विनर। देखिए अब मैंने एक एग्जांपल दिया, सिंपल था, 3 कैंडिडेट थे। देखिए एक को 98 मिले, 99 मिले और 100 मिले। आप कहेंगे सर देखिए एक एक वोट का ही तो डिफरेंस है। नहीं, नो मैटर, एक वोट का भी डिफरेंस है तो दैट मेक अ डिफरेंस, दैट मेक अ डिफरेंस मीन्स the candidate who got the maximum number of votes or the candidate who got more vote from its competitor, his or her competitor, वो इलेक्शन विन कर जाता है। दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और जब इलेक्शन एनालिसिस होता है, आफ्टर एवरी इलेक्शन देयर इज इलेक्शन एनालिसिस बाय द डिफरेंट न्यूज चैनल एंड डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो करती है, तब हमें बड़े चौंकाने वाले, बड़े ही एक चौंकाने वाले डाटा हमें मिलते हैं। लाइक कोई पार्टी है, उसने जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में, अगर हम यूपी की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं, अब पता लगता है कि वहां पे पार्टी ने 60 सीट्स विन की हैं। हाउ मेनी सीट्स, 60 सीट्स। 84 सीट्स हैं यूपी में, उसमें से 60 सीट्स जो है वो एक पार्टी ने, सपोज करो पार्टी 1 है, उसने जो है विन की है। बट अगर हम उसका वोट शेयर देखें ना, वो हमारा 40% ही है। मीन्स देखिए, मीन्स उस पार्टी को टोटल वोट का 40% मिला है। टोटल वोट, सपोज करो 100 वोट वहां पर जो है पूरे स्टेट में जो है पोल हुए थे, उसके 40% वोट ही मिले हैं इसको। बट सीट कितनी विन कर गई, 60। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मार्जिन जो है वो 100 वोट्स, 1000 वोट्स, 2000 वोट्स, इस टाइप का मार्जिन होगा, जो कि कोई मार्जिन नहीं रहता। लेकिन एक भी सीट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो विन कर जाएगा। दैट्स व्हाई ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर। इतनी वोट नहीं होती, कई बार टोटल वोट अगर हम काउंट करें इतनी नहीं होती, परसेंटेज में उससे ज्यादा सीट्स जो है पार्टी वो सिक्योर कर लेती है इस सिस्टम में। सो सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है। सिंपल सी बात है, हम वोट डालते हैं, 3 कैंडिडेट हैं, 3 को वोट डाला, जिस कैंडिडेट के वोट सबसे ज्यादा होंगे वो जो है विन कर जाएगा। सपोज इन योर क्लास अगर मैं चाहता हूं कि सॉरी, वी वांट टू इलेक्ट अ मॉनिटर फॉर योर क्लास। एक मॉनिटर जो है, एक मेंटर जो है, हम आपकी क्लास के लिए जो है इलेक्ट करना चाहते हैं। और सिंपली मैंने कहा लाइक वी हैव a स्ट्रेंथ ऑफ 50 की हमारी स्ट्रेंथ है हमारी क्लास में। और सिंपल सी बात है, 2-3 कैंडिडेट ने कहा कि आई वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, मैं लड़ना चाहता हूं। हमारे पास 3 कैंडिडेट आ